वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। ओम श्री पद्मावतीये नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे स्वरूपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी மந்திரமூர்த்தே மகாதேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று திருச்சானூர் தாயாரை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய சிறப்பு புஷ்பயாகத்தை முன்னிட்டு இப்பொழுது ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அர்ச்சக சுவாமி முதலில் பாஞ்சராத்திராகம விதிமுறைப்படி விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம், கலசாராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த மகாலட்சுமியை பார்க்கடலில் அமுதத்திற்காக கடைந்த பொழுது லக்ஷ்மி தோன்றியதும் ரிஷிகள் ஸ்ரீ சூக்தத்தினால் லக்ஷ்மியை ஸ்தோத்திரம் செய்து, ஸ்ரீ சூக்தம் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்த ஒரு சூக்தம், 15 ரிக் மந்திரங்களை கொண்டது. சூக்தம் என்றால் ஒரே தெய்வத்தை பற்றியதும் ஒரு பொருளை பற்றியதுமான அந்த ஸ்ரீ சூக்த மந்திரங்களை கூறிக்கொண்டு பாஞ்சராத்திராகம விதிமுறைப்படி ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மகாலட்சுமியை ரிக்வேதத்திலே கிலம் என்ற ஒரு பகுதி, அதிலே 15 ரிக்குகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு ரிக்கிற்கும் ஒவ்வொரு பலனை கொடுக்கிறது. அவை என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது தேஜஸ், பசு சேவகர் முதலியவை, பகை அழிவு, கல்வி, ஐஸ்வர்ய விருத்தி, நிலையான செல்வம், குபேரன் ஆசி, சிந்தாமணி ஆசி, தரித்திரம் நீங்கும், தானிய விருத்தியாகும், வாக்சாதுரியம் பெருகும், வம்ச விருத்தி அடையும், உயர் பதவி கிடைக்கும், வாகனாதிகள் வந்து சேரும், ராஜ்ய யோகம் முதலியன, கல்வி முதலியன செல்வங்களை இந்த ஸ்ரீசூக்தத்தை ஹோமமாக செய்யும் பொழுது தாமரை புஷ்பத்தை மிகவும் முக்கியமாக வைத்து கருதப்படுகிறது செய்கிறார்கள். அப்படி இந்த ஸ்ரீ சூக்தத்திலே திருமகளான லக்ஷ்மி பல பெயர்களை கொண்டு சேவிக்கப்படுகிறாள். அப்படிப்பட்ட திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய புஷ்ப யாகத்தை முன்னிட்டு இதோ இப்பொழுது ஸ்நாபன திருமஞ்சனத்திலே முதலில் விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஹிரண்ய வர்ணா என்றால் பொன்னிறத்திலே இருந்தவள், ஹரிணி என்றால் மான் வடிவிலே இருப்பவள், சந்திரா மதி என்றால் சந்திரனை போன்றவள், அனபாக முனீம் என்றால் நிலை தவறாதவள், ஆர்திரா என்றால் நீரில் தோன்றியவள், பத்மேஸ்திதா என்றால் தாமரையில் வசிப்பவள், பத்மவர்ணா என்றால் தாமரை வண்ணத்தாள் என்பவள், ஆதித்ய வர்ணா சூரியகாந்தி உடையவள், வருஷோபில்வா என்று கூவளத்தில் தோன்றியவள், கரிஷினி பெருகும் பசும் செல்வமுடையவள், ஈஸ்வரி எல்லா உயிரிலும் உறைபவள், புஷ்கரணி யானைகளால் வழங்கப்படுபவள், பிங்களா செம்மை நிறம் கொண்டவள், எக்கணி தர்ம தேவதை, சூர்யா கதிரவனை அதாவது சூரியனை நிகர்த்தவள், ஹிரண்மயி பொன்னிறத்தவள், ஹரிணி பச்சை மேனில் மான் என்று அர்த்தமும் உண்டு. இப்படியாக அந்த தாயாரை ஒரு சில நாமங்களினால் வர்ணிக்கிறார்கள் அந்த வேதத்திலே. அப்படிப்பட்ட தாயாருடைய ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். कर्मणोस्तु पुण्यां कर्मणोस्तु पुण्यां कर्मणोस्तु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नः पुण्यां भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति
कर्मणे स्वस्तिर्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु राधान् अभिषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः ऋद्धिपुण्याहं भवन्तु कर्मऋध्यताम् ॐ हिरण्यवर्णाश्रुतियः पावकायासु जातः कश्यपो यास्इन्द्रः अग्नेया गर्भन्धरे विलोपास्तानः पश्यग्स्य न भवन्तो यासागं राजा वरुणो यादिमध्ये सत्यानृते जनानाम् अधुश्चतश्रुचयो याः पावकास्तानः पश्यग्स्य न भवन्तो यासान् देवादि गृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं वयसोन्दन्ति शुक्रास्तानः पश्यग्स्य न भवन्तो शिवेन चक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवोपस्पृशदत्वचं मे सर्वागम् अग्नेकं रप्सुषतो हवे भौमयवर्चो बलमोजो निधत्त पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण वितर्षणिः यप्पोदासु पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतो गम्रणो यत्ते पवित्रमर्जुषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उवाभ्याम् देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यैव सर्वो वेदपृष्ठाः तया वदन्तस्सदमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भोः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः पृथावलीयमा पुनीताम् बृहद्भिः सविदस्त्रभिः परिधिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमः येन देवा अपुनरा येनापो दिव्यङ्कजः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानेरध्येते ऋषिभिः संवृतकं रसम् सर्वकोशपोतमश्नाति स्वजतं मातरिश्वना पावमानेर्योध्येते ऋषिभिः संवृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधुदकं पावमाने स्वस्तियनीः सुदुर्गाहि ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमाने दिशन्तु नः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्त्रिणः देवैर्देवैः समावृताः पावमाने स्वस्तियनीः सुदुर्गाहि धृतश्रुतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रम् शतोऽध्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणः समीक्ष्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोज्जिगेन्द्या पुनातो भुवस्वः दक्षयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगात भेषजं सन्नो अस्तद्विपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्थानानि देशानि सहस्रबाहुर्वरेण्यनामा व्रजांसि नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तं प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्जयतात् दक्षिणायां दिशि सङ्कर्षणो मार्जयतात् प्रतीच्यां दिशि प्रद्युम्नो मार्जयतात् उदीच्यां दिशि अनिरुद्धो मार्जयतात् दिशि महापुरुषो गदाधरो मार्जयतात् इत्येतेभ्यः श्रीपाञ्चरात्रागमदीक्षितेभ्यः वेदविद्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामेभ्यः वासुदेव पुण्याः वचनमन्त्रजपदक्षिण यजमानस्य मनसोत्साह परिमितहिरण्य तुभ्यमहं सम्प्रददे न मम वास्तोष्पदे प्रजजानि अनमेव भवानः यत्ते महे प्रतिदन्नो सुषन्नयेधिद्विपदे षण्चतुष्पदे आस्तोष्पदे शक्मया सुगं सुतादे दक्षीमहिरण्मया गातुमत्या आवः क्षेममुतयोगे वरन्नो योगं पात स्वस्तिभिः सदा नः वास्तोष्पदे प्रतरणो नयेधिगो
अश्वेभिरिन्दो अजरासस्ते सख्ये स्यामपि तेव पुत्रा प्रतिनोजुषस्व अमे महावास्तोष्पते विश्वारूप न्याविशन् सखासु सेवयेधिनः शुभगुं शुभम् ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹ. தாயாருடைய ஸ்நாபன திருமஞ்சனத்திலே வேத மந்திரங்களுடன் கூடிய கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்நாபன திருமஞ்சனம், அதாவது இந்த 8 நாட்களும் தாயார் மிகவும் களைப்பாக இருப்பதினால் இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருள்களிலே பால், தயிர், தேன், இளநீர், சந்தனம் மற்றும் மஞ்சளால் இந்த தாயாருக்கு திருமஞ்சனம் என்கின்ற அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாகனத்திலே காலையிலும் மாலையிலும் அந்த திருவீதி உலா வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த தாயாருக்கு சற்று களைப்பு ஆற இந்த திருமஞ்சனம் என்ற கைங்கரியம் நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை மாதம் தாயாருடைய பிரம்மோற்சவம் நேற்றுடன், அதாவது ஸ்நாபன திருமஞ்சனம் தீர்த்தவாரி சக்கர ஸ்நானத்துடன் முடிவு பெற்றது. நேற்று இரவு துவஜ அவரோகணத்துடன் அந்த கைங்கரியம் முடிந்தது. இதோ இப்பொழுது அந்த ஸ்நாபன திருமஞ்சனத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார்கள் அர்ச்சக சுவாமி அவர்கள். கலசங்களில் உள்ள அந்த தீர்த்த கைங்கரியங்களில் தீர்த்தங்களில் ஆவாகனம் செய்து அதன் பிறகு இந்த திருமஞ்சனம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. திருமஞ்சனம் என்றால் மாமூலாகவே மனிதர்கள் எங்காவது சென்று களைப்பு தீர வெந்நீரிலோ அல்லது குளிர்ந்த நீரிலோ நீராடுவார்கள். அதன் பின்பு அந்த களைப்பானது தீரும். அப்படி தாயார் இந்த 9 நாட்களும் பக்தர்களை அனுகிரகிப்பதற்காக இந்த வேளையிலே ஸ்நாபன திருமஞ்சனத்தை கைங்கரியமாக நடத்தப்படுகிறது. அப்படி ஸ்ரீதேவி என்கின்ற மகாலட்சுமி என்கின்ற பத்ம சரோவரத்திலே கார்த்திகை மாதம் பஞ்சமி திதி உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் ஆவிர்பவித்த அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய கைங்கரியத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ஸ்நாபன திருமஞ்சனம் ஆரம்பமாக உள்ளது. நேற்று மற்றொரு விசேஷம் என்னவென்றால், ராமாவதாரத்திலே ராமபிரான் சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொண்ட நாளாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறது. வைகானச சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த காசியப சம்ஹிதையில் இங்கு தேவிக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அனைவரும் கூட ஸ்ரீ சூக்தத்தை வைத்தே நடத்த வேண்டும் என விருதி வருகிறது. அகிர்புதன்யா சம்ஹிதை என்ற ஸ்ரீ சூக்தத்தை நாம் பாராட்டும் பேசும் பொழுது வெறும் திருமகளை மட்டும் புகழாமல் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு உடன் இணைந்த உருவத்தையே பரவுகிறது. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்திலே லக்ஷ்மி துர்க்கையாக வர்ணிக்கப்படுகிறாள். விஷ்ணு புராணத்திலும் இந்திரன் அவளை மகாவித்யா, குஹ்ய வித்யா, ஆத்மவித்யா என்றெல்லாம் புகழ்கிறான். ஸ்ரீ சூக்தத்தை தவிர இந்த லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரமும் உள்ளது. திருமகள் திருமணத்திலே இந்த பார்க்கடலில் பிறந்த லக்ஷ்மியுடன் பல பொருள்களும் தேவதைகளும் வெளிப்பட்டன. முதலில் ஆலகாலம் விஷம் வெளிப்பட்டு அதை சிவன் உட்கொண்டு எல்லோரையும் காப்பாற்றினார். பின்னர் காமதேனு, உச்சஸ்வரம் என்ற குதிரை, ஐராவதம் என்ற யானை, கௌஸ்துபம் என்ற மணி, மது இவை உண்டாயின. இப்படி காமதேனுவை வேள்வி செய்யும் ரிஷிகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். ஐராவதமும் உச்சைஸ்வரமும் தேவேந்திரன் உடமையாயின. கல்லை அசுரர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். கௌஸ்துப மணியை மகாவிஷ்ணு எடுத்துக்கொண்டு மார்பிலே அணிந்தாராம். பின்னர் ஸ்ரீதேவி வெளிப்பட்டாள். இதன் பின்பே லக்ஷ்மியும் வந்தாள் என்று கூறுகிறார்கள். கையிலே மாலையுடன் இருந்த திருமகள் 4 பக்கமும் பார்த்தாளாம். எல்லாம் நிறைந்த ஒருவனை அடைய வேண்டும், அப்படிப்பட்ட ஒருவனிடமே தான் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று தேடுகிறாள். இந்த லக்ஷ்மி தேவியானவள்
பசுமாட்டின் பின்புறமும் அந்த பசுமாட்டிலே 33 தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். இருந்தால் கூட அப்பொழுது முதலிலே மறுத்து விடுகிறாள். அதன் பின் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை அறிந்து அந்த சாணம் போடும் இடத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கிறாள். அப்பொழுதுதான் நாம் அங்கேதான் லக்ஷ்மி தேவியை நாம் பூஜை செய்கிறோம். இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவி இங்கே பத்மாவதியாக எழுந்தருளி திருச்சானூரிலே அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த தாயாருடைய ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை நாம் இப்பொழுது கலசாராதனையுடன் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமஹா என்று சதுஸ்லோகியிலே அந்த தாயாரை மிகவும் சிறப்பாக விളിக்கிறார்கள். எப்பொழுதும் அனைவரின் நெஞ்சுங்களிலும் நிறைந்துள்ளவள் பகவான் எனப்படும் நாராயணன். அந்த நாராயணனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடியிருப்பவள். ஜீவாத்மாவான நமக்கு அவள் தாசியாகவும் கைங்கரியம் புரிவதை குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் அவளை பரிபூர்ணமாக சேவிக்கிறோம். பகவான் எனப்படுபவனாகிய நாராயணனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே இருந்து நம்மை எல்லாம் ஆட்சி செய்பவள் இந்த தாயார். அப்படி அந்த எனக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து எங்களை வழிகாட்டு என்று சேவித்து கொள்ளலாம் அந்த தாயாரை. அப்படிப்பட்ட தாயார்தான் இதோ திருச்சானூரிலே எழுந்தருளியிருந்து அந்த ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக உள்ளாள். செவிக்கலாம் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகி பத்மாவதி தாயார் ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை அர்ச்சக சுவாமி ஆரம்பிக்க உள்ளார். பிராட்டியின் பெருமைகள் எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது, அழகு உள்ளவள், செல்வமும் கொண்டவள், வைகுண்ட லோகத்தினை தன்னுடைய ஆளுமையால் தனது ஒளியால் விளங்கச் செய்து மகிழ்விப்பவளும், நித்தியசூரிகள் ஆதிசேஷன் விஸ்வக்சேனர் என அழைத்து அனைத்து பரிஜனத்தையும் எம்பெருமானது அந்தந்த தொண்டுகளுக்குரிய கைங்கரியத்திலே நியமிப்பவளும், சீலம், வடிவு, குணம், சிருங்கார விலாசம் ஆகியவற்றால் தனக்கு ஏற்றவளுமான பிராட்டியோடு கூடியிருந்து வீற்றிருந்து அருளுபவனும் அந்த எம்பெருமான் தான். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு அயோனிஜே அனபாயினி என்றும் பெயர் கொண்டு பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை புஷ்பயாகத்தை முன்னிட்டு சேவிக்கலாம். அந்த தாயாருடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறுவோம். ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமஹா என்று சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரீம் தாசீபூத சமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம் என்று அந்த தாயாரை சேவிக்கலாம். அதாவது வைகுண்டத்திற்கு சென்று அந்த எம்பெருமானையும் தாயாரையும் சேவிக்க முடியாது. ஆனால் பூலோக வைகுண்டமாக திகழும் இந்த திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே புஷ்பங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு அந்த சொர்க்கத்தையே நினைக்கத் தோன்றும் அளவிற்கு அலங்காரம் செய்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த திருச்சானூரிலே கொலுவீற்றிருக்கும் தாயாரை சேவிப்போம். ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா என்று இதோ வண்ண மின் விளக்குகளால், அழகான புஷ்பங்களால், வாழை மரங்கள் மற்றும் புஷ்பங்களால், கனிகளால் அனைத்தும் கூட பகவானுக்கு அந்த தாயாருக்கு தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த தாயாருடைய ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமஹா என்று பத்மாவதி தாயாரை சேவிப்போம். லக்ஷ்மி என்றால் அடையாளம் அல்லது சின்னம் என்று கருதப்படுவதால் அந்த ஜெகன் மாதாவை லக்ஷ்மி என்று அழைக்கிறோம். எங்கு எதற்கு அடையாளமாக நின்றாள் என்றால் பிரகாசிக்கின்ற ஸ்ரீனிவாசனின் கருணைக்கு தயையாக நின்றவள். அனந்தனின் அனந்தமான கருணைக்கு அடையாள சின்னமாக ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். சத்தியமாய் நித்தியமாய் நிரந்தரமாக ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அச்சுதனின் ஆனந்தத்திற்கு அடையாளமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்.
சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் வக்ஷஸ்தலத்திலே ஸ்ரீவத்சம் என்ற சின்னமாகவும் அந்த சுவாமியின் அற்புதமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் அமிர்த தத்துவமாகவும் அனந்தமாகவும் தயை மிகுந்தவனாகவும் மன்னிக்கும் குணத்தை க்ஷமா குணம் உடையவளாகவும் பக்த சுலபனாகவும் அனபாயினியாக நின்றவள்தான் இந்த ஜெகன்மாதா ஸ்ரீ மகாலட்சுமி என்ற அனைவருடைய வாயினால் கீர்த்தனை செய்யப்படுபவள். அப்படிப்பட்ட அந்த மகாலட்சுமி இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக எழுந்தருளிருந்து பத்ம சரோவரத்திலே ஆவிர்பவித்து ஸ்நபனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக உள்ளாள். ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹ. வேத மந்திரங்கள் 4 வேதங்களும் முழங்க தாயாருக்கு இதோ ஷோடசோபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. 16 வகையான உபச்சாரங்களை செய்த பிறகு ஸ்நபனத்தை ஆரம்பிப்பர். தூப தீப நைவேத்தியம். தூபமானது தீபமானது அடுத்து நைவேத்தியமாக அந்த தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பத்மாவதி தாயாரே நமஸ்துபியம் என்று அந்த தாயாரை செவிக்கலாம். அதாவது ஒவ்வொரு முறைக்கும் அந்த தீர்த்தத்தை விடுவார்கள். தீர்த்த கைங்கரியம் மற்றும் இப்படியாக அனைத்து விதமான உபச்சாரங்கள் செய்து தாயாருடைய திருமஞ்சனத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகி லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாருக்கு 16 வகையான உபச்சாரங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. முகத்தை எல்லாம் அலம்பியது போல் மஞ்சள் குங்குமமிட்டு கண்ணாடியை காண்பித்து அந்த தாயாருக்கு செய்யும் சேவைகள் அனைத்தும் கூட நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாருடைய ஸ்நபனத்தை இப்பொழுது நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். பதினாறு வகையான உபச்சாரங்கள், ஷோடச உபச்சாரங்கள் ஆக திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பத்மாவதி தாய் மகாலட்சுமி தேவியானவள் 6 லட்சணங்களை உடையவள். சர்வ உலகங்களில் சர்வ பிரதேசங்களிலும் சர்வ காலங்களிலும் அனைத்து நேரங்களிலும் அந்த தாயானவளை ஆசிரயிக்கின்றனர் பக்தர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த திருச்சானூர் தாயாரை இதோ ஸ்நபன திருமஞ்சனத்திலே செவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். ஸ்ரீலக்ஷ்மியே நமஹா மகாலட்சுமியே நமஹா என்று சேவிக்கலாம். அந்த குங்குமம் பெண்களின் சௌபாகிய சின்னம். முடியில் முன் வருகுட்டில் சீமந்தம் லக்ஷ்மி உறைவதாக கூறுகிறார்கள். ஆகவே மணமான பெண்மணிகள் நெற்றியிலும் வகுட்டிலும் குங்குமம் இட்டுக் கொள்வார்கள். அந்த இடத்திலே தாயார் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பாள். குங்குமத்தின் மூலப்பொருள் புண் என்பதால் அதன் துவாரகையில் கோபி சந்தனம் எனப்படும். சுத்தமான மண். ஆனால் இந்த காலத்திலே குங்குமம் கல் உபயோகப்படுத்தி வந்துவிட்டது. ஆகவே நெற்றியிலே சந்தன பொட்டு இடுவதும் புன்றம் என்கிறார்கள். மஞ்சள் நிறமுள்ள சந்தன கலவை இது. மஞ்சள் பொடி, கேசரி, கஸ்தூரி இவைகளை பிற்காலத்திலே கலந்ததால் சிவப்பு நிறமாயிற்று என்றும் வாத்சாயனர் தம் காமசூத்திரத்திலே 64 கலைகளுள் திலகம் இட்டுக் கொள்ளுவதும் என்று ஒன்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சௌபாகியத்திற்காக மட்டுமின்றி தர்மத்திற்காக இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். ஆக தூப தீப நைவேத்தியங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. பெண்களானவர்கள் நெற்றியில் ஏதாவது ஒரு சின்னத்தை இட்டுக்கொள்வது யோக சாதனம் என்பது பலருக்கு தெரிந்திராத யோகத்திலே பல வகை உண்டு. அப்படி அந்த தாயாருடைய ஸ்நபன திருமஞ்சனத்திலே இத்தனை கைங்கரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் இந்த தாயாருடைய அனைத்து கைங்கரியங்களும் கூட
இதோ நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமண் பகவானையும் ஸ்ரீசூர்ணம் லக்ஷ்மியையும் குறிக்கிறது. ஸ்ரீசூர்ணம் என்றாலே லக்ஷ்மிகரமான தூள் என்று பொருள். திருமண்ணையும் ஸ்ரீசூர்ணத்தையும் சேர்ந்தே தரிக்க வேண்டும் என்றும், இந்த தம்பதிகளை பிரித்து தனித்தனியாக உபாசிக்க கூடாது என்றும் வைஷ்ணவர்களின் சம்பிரதாய முறைப்படி இந்த கைங்கரியங்கள் நடைபெறுகின்றன. பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி. அதேபோல் பிராட்டியை மட்டும் விரும்பினான் ராவணன், பெருமாளை மட்டும் விரும்பினாள் சூர்பனகை. பக்தி அடிப்படையிலே அல்ல, சின்ன இன்பத்தின் அடிப்படையில் இவர்கள் அழிந்தார்கள். 2 பேரையும் சேர்த்து பக்தியுடன் வழிபட்ட ஆஞ்சநேயரும் பிரணேதா ஹோ ஸ்மசிஸ்தாதா ஹோ ஹரிநாம் ஹோ गिर्वनः पाहि नः सूतं गिर्वनः पाहि नः सुतां मधोर्धारा धीरा हो ज्यासे हावा इन्द्रात्वादा तामायेत या शाह ओहो वा हरि श्री साघातं वृषानं राथा ओहो वा आधितिष्ठा तिगो वायिदां यः पात्रं रियो जानां पूर्णमिद्रा चिकेताति यो जानो वाई द्राता ओहो वा हारी श्रद्धे होई दाधा हो मी प्रथमा यम न्यावाये आहान होई यद्दाहो सुन्नारं निवे आपा आपः उभे होई यत्वा हो रोदसी धावताम् आनो आनो भ्यासाधोयि तेषु ओहो स्मात् पृथिवी चिद द्रीवो द्रीवाः द्रीवा ओहो वा हाउ वा धन्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं हिरण्यं
देयङ्गामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिनी देवीमुपक्वये श्रीं मा देवीर्जुषता तां सुस्थितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं नृत्तां तर्पयन्तीं मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भार्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह तद्भृतास्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभृतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियां मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महेश्वरेश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रायकरिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं तस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्याश्वान् इन्देयं पुरुषाणः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियजातश्रियानिर्याय श्रियं वयो जदिदृभ्यो दधातु प्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यस्वमिधज्यो मे श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति सन्ततमृजावकृत्यं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै
विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजिते किमन्दारमन्दा व्याजादधे आयङ्गौ प्रश्निरक्रमे दशनन्मातरं पुनः पितरं च प्रजान् सुवः श्रेयस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना यज्ञन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवत्या स्वल्पमग्ने तत्तव पुरस्त्वद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरो तस्य पृथिवीमनुदद्धसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभवन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवे ब्रह्मवर्चसः पितॄणाम् श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यगे महदनी महत्यतिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिहा वायुमती जलशयनी श्रियन्धा राजा सत्यन्धो परिमेदिनी परिधत्तङ्गाया विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपान् न्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्या प्रतीचे मे नागं हविषा यजामः रेखा विष्णुरुदाय विचक्रमे महेन्दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छृणीति शव इच्छमाना पुण्यश्लोकै यजमानाय कृण्वते गृणाहि जलवते सवितराधिपत्यै पयस्पतिरन्तिराशानो अस्तो ध्रुवादिशां विष्णुपत्यघोरास्येषा दासहसो यामनोता बृहस्पतिर्मातरे श्रोतवायः सन्धवानावाताम् अभिनो गृणन्तो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या
शेषादा जगतो विष्णुपत्नी सन्नो मित्रस्सं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तन्नो मित्रः वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिश ऋतमवादिश सत्यमवादिश तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मा आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे याचोदिताया चानदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपते परादां वैश्वदेवीं वाचमध्यासगं शिवामदस्तां जुष्टां देवेभ्यः शर्ममेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृणमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयानुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापादं प्राणापानौ मामाहाशिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमध्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यो
हस्तं मा एव अवन्तु भाजै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गच्छयोरावृणीमहे गातै यज्ञाय गातै यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ध्वंजिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तन्नो वातः पवतां मातरिष्व सन्नस्तपतु सूर्यः अहर्निशं भवन्तु नः शगुरात्रिः प्रतिधीयतामुषानो व्यच्छतु समादित्य उदेतु नः शिवानः शन्तमा भव सुमृळीका सरस्वती मा देव्यामसन्दृशे हिडायैवास्त्वसिवास्त्वमध्वास्त्वमन्तो भूयास्ममाभास्तु स्थित्स्मह्यवास्तस्वभूया नस्मान् च अयं विष्मः प्रतिष्ठासे प्रतिष्ठावन्तो भूया स्वमा प्रतिष्ठाया स्थित्स्मह्यप्रतिष्ठस्स भूया यस्मान् नेष्टियं च वयं विष्मः वातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे विमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः क्षम्ये अन्य आवातु परान्यवातु यद्रपः यदधो वातते गृहे भृतस्य निधिर्हितः ततो न देहि जीवसे ततो न देहि भेषजं ततो न मह आवह वात आवातु भेषजं सम्भर्मयो भोर्न हृदय प्रणआयोगंसितारिषत् इन्द्रस्य गृहसितं त्वा प्रपद्ये स गुस्साश्वः अयन्मे अस्ति तेन प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये स्वः प्रपद्ये भूर्भुवः स्वः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तां देवतां प्रपद्ये श्मानमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् उर्वन्तरं बृहदग्नय पर्वताश्च यजमानस्वस्त्या स्वस्तिमान्तया स्वस्त्या स्वस्तिमानसानि प्राणपानौ मृत्युर्मापातं प्राणपानौ मामाशिष्टं मयि मेधा मयि प्रजा
मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयेन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु अभिरक्तभिः परिपातमस्मारिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः अन्नमित्रवर्णमामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौ यानश्चित्र भवदते सदा वृध सखा कया शचिष्ठया वृता स्त्वा सत्यमदानां मगं हिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजेवसु भेषो नः सखीनाममिता चरितॄणां शतं भवास्योतिभिः पयस्वर्णा उपसेदुरेन्द्रं प्रियमेधादृशयो नाथमानाः अपस्वान्तमोर्नो हि भूर्भिचक्षुर्मभ्यस्मान् निधयेव बद्धाय शरन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु भीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याणां क्षयन्ते शर्षधीनाम् अपोयाचामि भेषजम् स्वमित्राण आपवोषधयः सन्तदर्मित्रास्तस्मै भूयासर्योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयं द्विष्मः बहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः सदेरिव मातरः अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुचगं शमयतु दरिक्षगं शान्तं तद्वायुना तन्मे शान्तकं शुचकं शमयतो शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचको शमयतो पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः
शान्तिरश्वशान्तिः पुरुषशान्तिर्ब्रह्मशान्तिर्ब्राह्मणशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः जयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः श्रीश्चक्रेश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्त मनोत्तिष्ठन्त मामाजश्रीश्चक्रेश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः आयुषा स्वायुषदोषधेनागं रसेनात्पर्जन्यस्य शुष्मेनादस्थाममृतागुम् अनु तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरते पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतगं शृणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमजितास्याम शरदः शतं चक्षुर्यन्द्रिषे उदगान् महतोर्नवात् विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात् समावृषभालाहिताक्षस्वर्या विपश्चिन्मनसा पुनाथो ब्रह्मणश्चोतन्यसि ब्रह्मण आनीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा महे धारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवन्दाधार पृथिवीघं सदेवायदहं वेद तदहं धारयामि मामद्वेदोऽधिविश्रसते धामनीषे माविशतागं समीचे भूतस्य भव्यस्यामरध्यै सर्वमायुरयानि सर्वमायुरयानि आभिर्गीर्भिर्यदतो नमो नमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महिगा प्रारुचासि भोयेष्ठभाजो अधते श्यामारम्भ प्रावादिष्पतन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
व्याख्यास्यामः कर्णस्वरः मात्र बलं समसन्तानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसं संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिवेद्यमधि प्रजमध्यात्मा तामहासगृहीता इत्याचक्षते अथाधिलोक पृथिवीपूर्वरूपं जौरोत्तररूपम् आकाशसन्धिः आयसन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषाग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः विद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषाधिविद्या आचार्यः पूर्व इत्यधिविद्या अथाधिप्रजा माता पूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मा अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः सन्धानम् इत्यध्यात्मा इति महासंहिताः य एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यश्छन्दसामृषभ विश्वरूपः छन्दोभ्यमृतात्सम् बभूव समेन्द्र मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयास शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरिविश्रवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना पर्वणा चिरमात्मनः
वासगोषि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह ओमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा सजने सानि स्वाहा श्रेयान् वस्य सोसानि स्वाहा द्वा भग प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे भगाहं त्वयि मृगे स्वाहा यथा प्रवतायन्ते यथा मासा अहर्जर एवं मां ब्रह्मचारिणः आदरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशासि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वां भूर्भुवः सुवदिति वा एतास्तिस्रो या हृदयः समूहस्मैतां चतुर्थे महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा आत्मा अङ्गान्यन्या देवता देवा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्ष सुवरेत्यसौ लोकः अह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः सुवयिति वायुः सुवरित्यादित्याः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिदिवार्चः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते आवायेताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो या हृदयः आयो वेद वेद ब्रह्मा सर्वे देवा बलिमा वहन्ति तय एष अन्तर्हृदय आकाशः अस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृत हिरण्मयः अन्तरेण तालुके एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः
नेत्रासौ केशान्तो विवर्तते यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भव इति वायौ परित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणे आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोपास्वाधिव्यन्तरिक्षन्द्योतिषो वान्तरदिशाः निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप औषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मा प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्पटे चर्ममाघं सद्गस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचते पान्तं वा इदगुं सर्वम् पान्तेनैव पान्तज्ञः प्रणोति ते ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्मवा अप्यश्रावयेन् श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं शामिति शस्त्राणि शंसन्ति ओमित्यध्वर्यः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवाप्नोति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय
मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराद्धेतरः तप इति तपनित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने हेमेति नागमात् कल्याः तद्धितपस्तद्धितपः अहं वृक्षस्य नेरिवा पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि रविनगुंसवर्चस सुमेधा अमृतोक्षितः त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनं वेदमनोच्याचार्यान्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तं माव्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं सत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि केचिदास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः येषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् क्रिया देयम् क्रिया देयम् क्रिया देयम् संविदा देयम् अभयति ते कर्म विचिकित्सा भावृत्त विचिकित्सा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलक्षधर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः तथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः
सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः लक्षधर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासन एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् तन्नो मित्रः वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिश समवादिश सत्यमवादिश तन्मावीत तद्वक्तारमावेत आवीन्मा आवेद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः గంధము పూసే వేలె కమ్మని మేన ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా గంధము పూసే వేలె కమ్మని మేన ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా అప్పటప్పటికి అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా అద్దము చూచే వేలే అప్పటప్పటికి అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా దగ్గరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా గద్దరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా గంధము పూసే వేలె కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా బంగారు విట్టే వేలి పడతి నీ మేనింద బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చినా బంగారు విట్టే వేలే పడతి నీ మేనింద బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చినా ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలునా పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలునా గంధము పూసే వేలె కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా సవరమేటికి నే జడియు నీ నెరులకు సవరము నీ కొప్పు సరివచ్చినా
సవరమేటికి జడియు నీ నెరులకు సవరము నీ కొప్పు సరివచ్చిన ఇవల జవులు నీకు నేలె వెంకటపతి సవరని తెమ్మోవి సవి కంటేనా ఇవల జవులు నీకు నేలె వెంకటపతి సవరని కెమ్మోవి సవి కంటేనా గంధము పూసే వేలె కమ్మని మీనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటి నెక్కుడా గంధము పూసే వేలె కమ్మని మీనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటి నెక్కుడా भव्यं
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ